Okay. So today we will discuss the beta decay, the Fermi theory of beta decay, as I told you, Fermi theory of beta decay. So before this, in the last lecture, that is regarding to that of the beta particle emission, that how beta particles come out of the nuclei, heavy nuclei, in fact, and how what will be the amount of energy. So we discussed some of the basic properties of the beta particle. So in the first slide, we discussed some general properties about the mass of beta particle, charge of beta particle. A part of this, the will they be deflected by electric and magnetic field? Yes, they will be deflected by electric and magnetic field. Penetration power of beta particle. Uh, they produce the fluorescence, phosphorescence, and scintillation phenomenons also. And beta particles are emitted by radioisotopes. A part of this, we discussed the beta particle emission. If you remember, there are three schemes or three modes of beta radioactivity or beta emission. That is, the first one was negatron beta negative emission, the second one was positron beta positive emission, the third one was the orbital electron capture, in which an nearest orbital electron of that same nucleus is captured by the nucleus, and it quickly combines with the proton to form a neutron. The basic conditions for these three types of for these three different modes of beta radioactivity were also discussed. Then we discussed the beta ray spectrum. ठीक है, बीटा स्पेक्ट्रम विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमने डिस्कस किया था. And we explained that the beta spectrum is continuous, not discrete, and there are some spikes or peaks upon this beta spectrum, which is an experimentally calculated, which was experimentally calculated. In fact, that spectrum between the average number of beta particles in E along the y-axis and total energy E along the x-axis, the spectrum that gives a continuous value with spikes. This was experimentally determined spectrum. Clear? Then the explanation of that spectrum was very difficult, and for that case, Rutherford first suggested that how the spectrum come up, and what does the spikes that are present upon this continuous spectrum, what those spikes show. So this was explained by Rutherford. Then we discussed some of the energy of the beta particle for a very simple nuclear reaction, in which 6C14, that is an isotope of carbon, transform into 7N14, an isotope of nitrogen, with the emission of a negatron, and we calculated the value, and then we explained that how these are associated, this energy is associated with that of the beta particle or electron. But however, in those days, as I told you, there was no concept of neutrino, so therefore it was thought that there is some violation in the energy conservation law. एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हमारे पास जो एग्जिस्ट करता है, विच शुड बी फुलफिल्ड, इट शुड बी फॉलोड बाय एवरी न्यूक्लियर रिएक्शन. एक किस्म का एक एम्बिग्विटी क्रिएट हो गई थी कि इसमें असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल नहीं होता, क्योंकि बीटा पार्टिकल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, वो एनर्जी एक्सपेरिमेंटली उसके पास नहीं थी. एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू वो नहीं थी जो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया. लेकिन there was no violation in the energy conservation, because later on, this was in 1933, Pauli suggested that no, in fact, there is another particle emitted along with that of the negatron. Or hello, आवाज सही राज अहमद अली? Yes, sir. Clear है, sir. Okay. This is just about the previous lecture, so that it should be in your mind. ठीक है, ये just recall करने के लिए मैं कर रहा हूँ. ठीक है, सही है? Yes, समझ sir. रहे हैं बात? Yes, sir. अच्छा, Yes. तो फिर हमने न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के बारे में बात की. दैट वाज प्रेजेंटेड बाय पाली इन 1933. ठीक है, फिर उसने सजेस्ट किया कि असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन नहीं होती, बल्कि इसके साथ बीटा पार्टिकल के साथ ही एक और पार्टिकल एमिट होता है जिसको न्यूट्रिनो कहते हैं, लिटिल न्यूट्रॉन वन.
ठीक है। और यही वो पार्टिकल है जो अपने साथ वो एक्स्ट्रा एनर्जी कैरी कर लेता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे पास मिसिंग होती है उस रिएक्शन में। फिर उस न्यूट्रिनो के लिए उसने स्टेटिस्टिक, उसकी चार्ज, उसकी एंगुलर मोमेंटम, उसकी एनर्जी कंजर्वेशन, ये तमाम एक्सप्लेनेशन पाली ने थ्योरेटिकली प्रेजेंट किया था। फिर इसके साथ ही उसने एंटी न्यूट्रिनो के बारे में भी बात की कि एंटी न्यूट्रिनो भी इमिट होता है, विच इज़ एन एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो, and the spin of neutrino was a little bit different from that of the neutrino. Then after that we also discussed the Feynman model of the beta decay process. If you remember, Feynman model में उसने मज़ीद क्वार्क्स की बेस पर अल्फा बीटा पार्टिकल की एमिशन को एक्सप्लेन किया था कि असल में बीटा पार्टिकल एमिट होता है व्हेन ए न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू ए प्रोटॉन in weak interaction along with the negatron beta negative, a antineutrino particle also emits, ठीक है। और इस केस में हमारे पास जो वीक इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है वो W माइनस बोजॉन है, W plus minus boson, Z neutral boson. These were the particles that were predicted by Dr. Abdul Salam and his co-worker. This was explained in the last lecture. Okay, so this is something about that of the previous lecture, that how we gone systematically step by step, and how we solve and resolve the problems that were faced during the beta decay for the that was faced by the scientific community of that time. And then Fermi in 1933 gives his neutrino hypothesis. And now today we will discuss that furthermore what Fermi present about the beta decay, that is called the Fermi theory of beta decay. Fermi theory of beta decay. So this is the content of today's lecture. That is the historical background, little bit, that how Fermi predicted this theory. The Fermi assumptions. There are few assumptions because for a certain particle to present a theory, you have to assume some facts. So there are few assumptions about that of the Fermi theory. Then explanation of the Fermi theory, and then there are a few steps involved because of course this is a quantum mechanical explanation of this theory, quantum mechanical explanation for the beta emission. So in step one we will derive the derivation of HIF. HIF is the total Hamiltonian, which is the total energy of the system. The system is parent nucleus, daughter nucleus, neutrino and beta particle. स्टेप टू में हम कैलकुलेट करेंगे स्टेट डेंसिटी, स्टेप थ्री में हम कूलम करेक्शन हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, स्टेप फोर में टोटल प्रोबेबिलिटी डिटरमिन करेंगे, एंड देन वी विल शो द रिलेशन with half life, because that is the major aim. अगर if you remember अल्फा पार्टिकल में भी हमारे पास ये रिलेशन ज़रूरी था, the relationship between log of disintegration constant lambda and log of E energy. So इसी तरह ये relation for the half life lambda और disintegration हमारे पास ज़रूरी है यहाँ पर भी. This is Fermi, Enrico Fermi, who presented the 1933 Fermi theory. He was a brilliant Italian professor. He was an Italian scientist, physicist, and he was the first man who gives the model of the nuclear reactor. ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर का जो मॉडल है वो सबसे पहले इसने proposed किया था कि a nuclear reactor should work according to these principles, and this should be the model for that of the nuclear reactor. But however, today we are discussing his contribution in terms of the beta decay, for which he presented his theory. In 1934, Enrico Fermi, he was a professor of theoretical physics at the University of Rome, Italy. He proposed that beta decay by assuming the existence of neutrino. ठीक है, ये इससे पहले भी हम कर चुके हैं कि उसने सबसे पहले क्या प्रपोज किया था, न्यूट्रिनो, that was a little neutral particle that emits along with the emission of beta particle. Fermi theoretically obtained the continuous shape of the energy spectrum. Of course, energy spectrum जो हमारे पास experimental value आ रही थी
वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें दे रहा था बीटा पार्टिकल की एनर्जीज और इसकी नंबर यानी तादाद के दरमियान. सो फर्मी आल्सो एक्सप्लेन द continuous shape of the energy spectrum. So he theoretically obtained the continuous shape of energy spectrum of beta particle and decay constant on basis of the Pauli neutrino hypothesis. Okay, this is called Pauli neutrino hypothesis. Then Fermi derived an expression for the decay constant. Of course, you know this is important, and this is the aim of this theory. Decay constant lambda, disintegration constant भी इसको कहते हैं. From initial state of parent nucleus to final state of daughter nucleus. These sentences you will always hear initial state of parent nucleus to final state of daughter nucleus. Okay, so Fermi theory is basically revolving or it is you can say oscillating between these two states: initial state of parent nucleus and final state of daughter nucleus. What were the assumptions of the Fermi theory? What he assumed in order to give his theory, in order to explain the quantum mechanical calculations for this theory. So the first assumption was that electron, in this case electron means beta particle, electron and neutrino are created by the transformation of a neutron into a proton in the nucleus and vice versa. अब ये हम मेरे ख्याल में आप सबको याद है, ये हम कर चुके हैं, ठीक है ना. हमने तीनों स्कीम्स में निगाट्रॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो हमारे पास किस तरह इमिट होते हैं. दे आर क्रिएटेड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू ए प्रोटॉन. व्हेन ए न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू ए प्रोटॉन, what's happened, beta particle emit and along with it a neutrino also emit in the nucleus, and vice versa means when a proton transform into a neutron. Okay, when a proton transform into a neutron, so a beta particle emit along with the neutrino. Second assumption of the Fermi was that total energy remains conserved. Total energy remains conserved. ये conserved है, यही वो basic problem था जिसके बारे में साइंटिस्ट कह रहे थे कि शायद इसकी कंजर्वेशन फुलफिल नहीं होती, टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं है. लिहाजा उसने अपनी दूसरे assumption में ये कहा कि no, this is confirmed that total energy in beta emission will remain conserved in beta decay process. The available energy is shared between electron, beta particle and neutrino. ठीक है, ये बाकी जो एनर्जी है, अवेलेबल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. थर्ड assumption, द न्यूट्रिनो हैज जीरो रेस्ट मास. ठीक है, न्यूट्रिनो का मास हमारे पास जीरो है, आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. ये भी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ द न्यूट्रिनो. सो दैट वाज me डिवाइडेड बाय 1000 और व्हाट वो क्या था. सो वो हम शो कर रहे थे कि न्यूट्रिनो का जो मास है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो और वेरी वेरी स्मॉल. Fourth assumption that the Fermi made was that beta decay results from the weak interaction. Now this is a quantum mechanical term and this fact is associated with that of the particle physics. Particle physics में हम ये पढ़ते हैं कि कौन से पार्टिकल की एमिशन किस किस्म की इंटरेक्शन में होती है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गेमा. सो इसके लिए फर्मी ने क्या कहा कि बीटा डीके रिजल्ट्स फ्रॉम द वीक इंटरेक्शन. वीक इंटरेक्शन में की वजह से ये होता है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दैट इज बीटा पार्टिकल, नेगाट्रॉन और पॉजिट्रॉन, एंड न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो मीन्स न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, इसमें दोनों शामिल होते हैं, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ न्यूट्रिनो लिखते हैं. सो वीक इंटरेक्शन में ये हमारे पास एमिट होता है विच इज एक्सप्रेस्ड. अब ये वीक इंटरेक्शन हम किस में एक्सप्रेस करेंगे क्वांटम मैकेनिकल टर्म में. दिस इज एक्सप्रेस्ड एज अ परटर्बेशन ऑफ टोटल हैमिल्टोनियन. परटर्बेशन ऑफ टोटल हैमिल्टोनियन में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस वीक इंटरेक्शन को, और ये इस तमाम पार्टिकल्स को किस्म का ग्रैब करेगा जिसमें हमारे पास न्यूक्लियॉन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो. So this will be represented by the perturbation theory. मेरे ख्याल में आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, ये बिल्कुल लास्ट में
क्वांटम मैकेनिक्स की जो लास्ट चैप्टर्स है उसमें परटर्बेशन थ्योरी है. सो you will read about the perturbation theory in quantum mechanics. Fifth assumption was that beta decay process is analogous to the emission of electromagnetic radiation by an atom. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. This was in fact given by this was explained by Rutherford that how beta particles are emitted. So just like alpha particle के बारे में हमने कहा था कि ये प्री एग्जिस्ट करता है लेकिन बीटा पार्टिकल प्री एग्जिस्ट नहीं करता. इट इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ एमिशन. ठीक है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं that beta particles are created at the time of emission just like that of the photons that are created at the time of their emission when an electron jumps from its excited state टू डी एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, एक्साइटेशन से डी एक्साइटेशन में हमारे पास जब एटम जाता है तो उस दौरान फोटोन निकलता है. सो उसी तरह हमारे पास ये बीटा पार्टिकल भी है. सो बीटा डी के प्रोसेस इज एनालॉगस टू द emission of electromagnetic radiation by an atom with the electron neutrino field acting in place of electromagnetic field. अब फ़र्क क्या है एटॉमिक फिजिक्स में? जब हमारे पास की एटम एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड स्टेट में चला जाए तो फोटोन निकलता है, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होता है. ठीक है, जबकि बीटा पार्टिकल एमिशन में जब कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसी दौरान बीटा पार्टिकल इमिट होता है. लेकिन इसमें हमारे पास कौन सा फील्ड इन्वॉल्व है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो फील्ड. इस फील्ड को हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो फील्ड कहते हैं, ये इन्वॉल्व होता है. Sixth assumption was that electron neutrino field is weak. Now this is important. This field is weak. Electron neutrino field is weak in contrast to the short range strong interaction. अब दो किस्म के इंटरेक्शन है. एक आपको पता है कि सिंस ये तमाम फिनोमेना न्यूक्लियस के अंदर होता है तो शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो मौजूद है, लेकिन उसकी मौजूदगी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो फील्ड भी एग्जिस्ट करता है. वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो ये वीक इंटरेक्शन है या वीक फोर्स है विच एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दैट आर बाउंड इन द न्यूक्लियस. ऑफ कोर्स ये न्यूक्लियस के अंदर ही बाउंड होते हैं. सो ये हमारे पास सिक्स्थ assumption है about which the Fermi is aiming towards the existence of the electron neutrino weak interaction, electron neutrino field that is a weak interaction. Okay, now those were the few assumptions which were made by the Fermi. Now how excuse me sir, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो फील्ड असल में ये हमारे पास वीक इंटरेक्शन है. आपको पता है कि देयर आर फोर फोर्सेस इन द नेचर. नंबर वन इज द शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, ये एक फोर्स है. दूसरा फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स है. ठीक है, थर्ड फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्थ इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, सो इससे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स था लेकिन ये दोनों कंबाइन होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन गया. तो अब न्यूक्लियस के अंदर, अब हम चूंकि न्यूक्लियस के अंदर की बात करते हैं, अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन, गामा एमिशन, तो न्यूक्लियस के अंदर एक बात तो ये कंफर्म है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है. ठीक है ना, ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट से हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट डज द न्यूक्लियर फोर्स दैट इज स्ट्रॉन्ग, व्हाट डज इट मीन. ठीक है ना, तो इसकी मुख्तलिफ एस्पेक्ट से हमने इसकी एक्सप्लेनेशन की थी कि हमारे पास एक तो एक्सप्लेनेशन ये थी कि दो प्रोटॉन के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्रोटॉन को इतने कम तरीन फासले पर नहीं रख सकते. ठीक है ना, दिस इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल that you will put two protons together in at a distance of 1 femtometer. 1 femtometer फासले के अंदर आप दो प्रोटॉन को नहीं रख सकते, लेकिन है मौजूद तो है, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है. तो ये कौन सा फोर्स है जो इस स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर लेता है? तो हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है. तो इसी तरह हमारे पास जब इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन of proton to neutron with the emission of beta neutron to proton. अब इस किस्म के ट्रांसफॉर्मेशन में
हमारे पास कौन सा इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है, वीक इंटर या वीक न्यूक्लियर फोर्स आप इसको कह सकते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स अकॉर्डिंग टू फर्मी, दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन का मतलब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर इसका मतलब है बीटा पार्टिकल, बिकॉज इसके तमाम रिजेम्बलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ है। सो बीटा पार्टिकल आप इसको कहते हैं कि बीटा न्यूट्रिनो फील्ड, भी आप इसको कहते हैं बीटा न्यूट्रिनो फील्ड या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो फील्ड, दैट इज a field for which a weak interaction is responsible। ये अगर आपको याद है तो फेनमैन मॉडल में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि when a neutron transform into a proton by the transformation of an up quark to a down quark, along with that a weak interaction, that is W negative interaction। W नेगेटिव तो एक पार्टिकल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है वीक इंटरेक्शन के लिए, ठीक है, लेकिन ये फिर फर्दर इन डेप्थ चला जाता है पार्टिकल फिजिक्स की तरफ। लिहाजा आप जनरली अपने जहन में ये रख लें कि जो वीक इंटरेक्शन है उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो फील्ड एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो फील्ड। Okay, so how quantum mechanically we will derive those basic expressions, those basic calculations or equations for the determination of this theory? So, of course, quantum mechanics को ही follow करेगा। So, the transition probability. Now, transition probability आप अपने जहन में ये रख ले कि आपके पास parent nucleus है, ठीक है, तो parent nucleus अपने जहन में रख ले, और उसके बाद हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस है। तो जो पेरेंट न्यूक्लियस के एक न्यूक्लियस है उसको हम इनिशियल स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस को हम इनिशियल स्टेट, जिसको हम स्मॉल आई कहते हैं, इनिशियल स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनल स्टेट को हम डॉटर न्यूक्लियस के साथ एसोसिएट करते हैं। सो द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी per unit time between P and P plus dP from initial state I to final state if is given by the perturbation theory is given by PPE DPE। ओके, अब इससे पहले अब चूंकि ये अपने जहन में रख ले कि ये 1933 है, ठीक है ना, अभी तक कोई ऐसा स्पेसिफाइड हमारे पास कोई मॉडल नहीं है या न्यू इक्वेशंस नहीं है। तो जब न्यू इक्वेशन नहीं है तो ऑफ कोर्स हम पहले से एग्जिस्टिंग इक्वेशंस को लेंगे, ठीक है ना। सो ये कहता है कि यूजिंग डिराक्स एक्सप्रेशन, ये डिराक एक एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है फॉर द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ऑफ एन एटॉमिक सिस्टम टू एमिट फोटोन। आपको याद है हमने इस बीटा डीके को एटॉमिक एमिशन में फोटोन की एमिशन से एसोसिएट किया। अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि जिस तरह फोटोन निकलता है तो इस तरह बीटा पार्टिकल भी निकलता है। अब फोटोन के लिए तो हमारे पास कैलकुलेशन मौजूद है, वो एग्जिस्ट करते हैं, उसकी कैलकुलेशन क्लासिकल मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह इसकी हमारे पास एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होगी। इसके अलावा क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन भी एटॉमिक फिजिक्स के लिए हमारे पास मौजूद है, और वो हमारे पास डिराक एक्सप्रेशन, डिराक एक एक्सप्रेशन है उसकी फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। चूँकि ये हाई लेवल में पढ़ाए जाते हैं लिहाजा ये शायद आपको अभी आपने इसको नहीं पढ़ा होगा, लेकिन लिहाजा हम वो रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस क्या है कि यूजिंग डिराक्स एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ऑफ एन एटॉमिक सिस्टम टू एमिट फोटोन। अब एटॉमिक सिस्टम एमिट फोटोन, तो ये एटॉमिक सिस्टम की बात है, उसको हम कंसिडर करेंगे, उस इक्वेशन को हम लेंगे एक ये। दूसरा, यूजिंग टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, समझ आ गई, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, ये मैंने आपसे कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स में आप पढ़ेंगे इसको। दूसरा हम वो लेंगे। सो ये मिलाप है, ये इक्वेशन ए जो आप देख रहे हैं ये मिलाप है दो फैक्ट्स का। नंबर वन, डिराक एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी per unit time of an atomic system to emit photon, और दूसरा using time dependent perturbation theory। So the probability that an electron of momentum between PE and PE plus DPE, अब ये momentum को represent करता है, is emitted per unit time may be written as this, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि यहाँ पर बीटा पार्टिकल है, ठीक है। अब बीटा पार्टिकल with momentum between PA and PE plus DPE हमारे पास जो निकलता है तो उसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन ए। P PE DPE is equal to 2 pi divided by h cut HIF whole modulus square dn divided by
DE। ये एक एक टर्म हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या शो करता है। ओके, HIF मॉडुलस जो इस इक्वेशन ए में आप देखते हैं, दिस इज कॉल्ड द हैमिल्टोनियन दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, ये हैमिल्टोनियन तो आप क्लासिकल फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल टर्म है तो HIF हैमिल्टोनियन रिप्रेजेंटिंग मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, जिसका मतलब ये है कि आपके पास एक न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस अल्फा बीटा पार्टिकल इमिट करता है, अलॉन्ग विद दैट न्यूट्रिनो इमिट होता है, तो इसके इनिशियल स्टेट, जिसको मैंने आपसे कहा था कि इनिशियल स्टेट का मतलब होगा पेरेंट न्यूक्लियस, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट का मतलब यह है कि डॉटर न्यूक्लियस या डॉटर न्यूक्लियस के साथ निकलने वाले बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो, इसका मतलब ये होगा। समझ आ गई? HIF क्या है? हैमिल्टोनियन। इसी इक्वेशन में इसी इक्वेशन के साथ, इक्वेशन ए के साथ आप ये देख रहे हैं, ये इक्वेशन दैट इज कॉल्ड लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय h कट m मॉडुलस स्क्वायर d n डिवाइडेड बाय de। ये इक्वेशन 1 है। बाज़ बुक्स में इसको इस तरह लिखा है, बाज़ बुक्स में इसको इस तरह लिखा है। ठीक है ना? सो इस इक्वेशन 1 को हम फर्मी गोल्डन रूल भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्मी गोल्डन रूल। So Fermi golden rule and this equation are almost same. Or if a question comes in the paper, they derive the Fermi golden rule. So इसका मतलब क्या होगा कि आपसे ये फर्मी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन जो है उसको आप स्टार्ट कर लें। सो यही आपको फर्मी गोल्डन रूल या इक्वेशन 1 देगा। इस इक्वेशन में आप ये देख रहे हैं dn डिवाइडेड बाय de। ये क्या है? दिस इज द total number of quantum mechanical states per unit energy interval। टोटल नंबर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स, जितने भी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स इन्वॉल्व है पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, तो वो आपके पास डी एन डिवाइडेड बाय डी ए रिप्रेजेंट करता है। फिलहाल हमारे पास दो स्टेट्स है, इनिशियल स्टेट आई एंड फाइनल स्टेट एफ। सो इसके लिए हमारे पास ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डी एन डिवाइडेड बाय डी ए। ओके ओके, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि HIF, ये आप देख रहे हैं इक्वेशन ए में HIF होल मॉडुलस स्क्वायर है। HIF को डिराइव करना है कि ये HIF क्या है और ये क्या शो करता है, ये इस बीटा पार्टिकल की एमिशन में क्या रोल प्ले करता है। सो सिंस वी नो दैट HIF हैमिल्टोनियन है, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसको यू लिखते हैं इंटीग्रल साई क्या है? वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द फाइनल स्टेट साई एफ स्टार एच साई आई डी टा। ये इक्वेशन है HIF का क्वांटम मैकेनिक्स में, ये डायरेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स से ले लिया गया है। अब यहाँ पर ये क्या शो करता है? साई आई एंड साई एफ आर द वेव फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। अब ये पूरे सिस्टम के बारे में इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, साई आई एंड साई एफ। हैमिल्टोनियन एच, ये इस इंटीग्रल के अंदर, is an operator corresponding to the total energy of the system। total energy of the system को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इस ऑपरेटर को हम यूज करते हैं H। एंड डिस्क्राइब्स, ये इसके अलावा ये दूसरा इसका काम का क्या है? ये डिस्क्राइब करता है द वीक इंटरेक्शन बिटवीन द टू स्टेट्स। एक तो ये एज एन ऑपरेटर काम करता है, H ऑपरेटर आप पढ़ चुके हैं ना क्वांटम मैकेनिक्स में। एक तो ये एज एन ऑपरेटर काम करता है, दूसरा ये वीक इंटरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द टू स्टेट्स, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। डी टॉफ क्या है? दिस इज द वॉल्यूम एलिमेंट या वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द होल सिस्टम। पूरे सिस्टम के लिए वॉल्यूम एलिमेंट को शो करता है डी टॉफ। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ अब आप देख लें, लेट सपोज दैट फॉर नेगाट्रॉन डीके, ये आप देख रहे हैं नेगाट्रॉन बीटा नेगेटिव डीके की अगर हम बात करते हैं, ये अब बेसिक इक्वेशन आ चुका है। ठीक है, सो नेगाट्रॉन एमिशन में हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू ए प्रोटॉन, along with it there emits a negatron बीटा नेगेटिव प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तब इसमें इनिशियल स्टेट क्या है? इनिशियल स्टेट या इनिशियल स्टेट फॉर पेरेंट न्यूक्लियस, सो ये हमारे पास ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, और फाइनल स्टेट क्या है? इस फाइनल स्टेट के लिए हमारे पास 3 पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटॉन, नेगेट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो।
ठीक है, लिहाजा हम इसको यूँ कह सकते हैं कि साई आई वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द एसोसिएटेड विद द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसको आप किस तरह इंटरप्रेट करेंगे? साई आई क्या शो करता है? जिस द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द इनिशियल स्टेट आई ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की बात करता है, ये आप देख रहे हैं, ये सिस्टम है आपके पास। So this is equal to psi f, this is the wave function associated with the final state of the system। final state का मतलब अब ये है कि ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस, सॉरी डॉटर न्यूक्लियस अब क्या है? प्रोटॉन है, प्लस psi e वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द बीटा पार्टिकल नेगाट्रॉन, प्लस psi न्यूट्रिनो। psi न्यूट्रिनो का मतलब ये है कि द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द न्यूट्रिनो। ये तीनों मिलाकर, ये आप देख रहे हैं, ये तीनों मिलाकर वेव फंक्शन ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम देगा आपको। समझ आ गई? उम्मीद है सबको समझ आ चुकी होगी। साई एफ देगा आपको, दैट इज द वेव फंक्शन ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। लिहाजा हम इस सिस्टम के लिए निगेट्रॉन एमिशन में जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो इस सिस्टम के लिए हम ये लिखेंगे साई आई क्या है? wave function of the parent nucleus, that is represented by psi I। psi f क्या है? That is the wave function of daughter multiplied by wave function of electron in negatron multiplied by wave function of the एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो, जो भी पार्टिकल इन्वॉल्व है उस सिस्टम में, उसके लिए। लिहाजा ये तीनों मिलाकर, तीनों मल्टीप्लाई करके आपको उस सिस्टम का फाइनल स्टेट वेव फंक्शन देगा। सो वेव फंक्शन ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू साई एफ psi e psi anti-neutrino, psi anti-neutrino। Okay, now in order to know about h क्या है? वही इक्वेशन 1 में हैमिल्टोनियन है, ये हमारे पास इसकी बात कर रहा है, इसके बारे में अगर हम जानना चाहें, so this book says that in order to know about h, what does it mean? So in order to know about H, the Fermi suggested a constant that is called Fermi coupling constant। इसके लिए हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, लिहाजा फर्मी ने इसके लिए सजेस्ट किया a constant that is called Fermi coupling constant, that is represented by the symbol small g with which determines the strength of interaction। ठीक है, so we do not know the form of interaction operator H, but Fermi suggested a new constant that is called the Fermi coupling constant denoted by G, which determines the strength of interaction। ठीक है, ये strength of interaction को determine करता है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.9 × 10⁻⁻⁴ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी FM क्यूब। ठीक है, सो हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, बिकॉज so if we incorporate small g, so what will does it mean? It means that एक ये फैक्ट आपके जहन में आ गई है। इन ऑर्डर टू नो अबाउट एच, हैमिल्टोनियन एच, फर्मी ने ये कांस्टेंट सजेस्ट किया। ये कांस्टेंट हमें क्या देगा? ये डिटरमिन करेगा द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन, कि इस इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, क्या है इसकी स्ट्रेंथ? एक ये फैक्ट है हमारे पास। और दूसरा फैक्ट हमारे पास ये है कि एमिशन ऑफ न्यूट्रिनो एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो ऑफ अपोजिट मोमेंटम आर इक्विवेलेंट। अब ये भी एक फैक्ट है कि अगर हमारे पास न्यूट्रिनो एमिट होता है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो ऑफ अपोजिट मोमेंटम ये हमारे पास बराबर है। यानी दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में, न्यूट्रिनो का एमिट होना और एंटी न्यूट्रिनो का एब्जॉर्ब होना, ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट हम क्वांटम मैकेनिक्स में सेम लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साई स्टार ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, साई स्टार ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, दिस इज इक्वल टू साई ऑफ न्यूट्रिनो, वेव फंक्शन ऑफ न्यूट्रिनो। ये एक फैक्ट है, इस तरह जिस तरह ये है जी, स्मॉल जी। लिहाजा हमारे पास इक्वेशन 1 अगर हम लिखना चाहें, इक्वेशन 1 ये वाला, सो ये हम क्या करेंगे? साई एफ स्टार की वैल्यू स्पुट करेंगे, ये हमारे पास है, साई आई भी है और एच की वैल्यू भी है। सो देयरफॉर एच आई एफ हैमिल्टोनियन ऑफ इनिशियल फाइनल स्टेट इज इक्वल टू जी इंटीग्रल साई एफ की जगह हम क्या पुट करेंगे? ये वाला पुट करेंगे। ठीक है, साई एफ स्टार, साई ई स्टार, फिर ये स्टार इन तीनों पर आ जाएगा। ठीक है, साई एफ स्टार, साई ई स्टार, साई एंटी न्यूट्रिनो स्टार। समझ आ रही है ना? ये स्टार है ना, तो साई एफ के साथ जितने भी 3 एलिमेंट्स, 3 फैक्टर्स है, साई एफ, साई ई, साई एंटी न्यूट्रिनो, इस पर स्टार आ जाएगा।
यहाँ पर स्टार आ चुका है लेकिन हम वो स्टेप यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, और साई एंटी न्यूट्रिनो स्टार की जगह में मैंने क्या पुट किया है, साई न्यू। ये आप देख रहे हैं साई न्यू। सो ये साई न्यू इस साई एंटी न्यूट्रिनो स्टार की जगह आ चुका है। एम psi I d tau, name it as equation 2. सर Now in this equation, yeah, सर ये इस वेव फंक्शन में सर साई एफ इज इक्वल टू साई एफ साई ई, सर ये साई डॉटर न्यूक्लियस के लिए और सर ये साई जो पेरेंट न्यूक्लियस है सर, इनका वेव फंक्शन चेंज नहीं होगा सर, क्योंकि इनको सर हाँ, एक ये ही अब एफ से ये रिप्रेजेंट साई किया एफ, हमने। बिल्कुल ये अब साई एफ जो है ना, ये अब डॉटर न्यूक्लियस के लिए है, साई एफ से रिप्रेजेंट किया गया है। सर तो ये टोटल भी आप सही इसकी एफ बात है। करें तो यस सर। हाँ बिल्कुल, साई एफ टोटल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन साई एफ का मतलब अब यहाँ पर क्या है, डॉटर न्यूक्लियस है। डॉटर न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव एंड मल्टीप्लाइड बाय न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो वेव फंक्शन। तो ये जस्ट सिंबल्स है बास बॉक्स में, इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया गया है, ये नहीं है, ये साई कैपिटल एफ। सो इसका मतलब ये है कि वेव फंक्शन ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, और फिर यस इसको सर। स्मॉल एफ, लेकिन बास बॉक्स में इसको स्मॉल एफ, इसको भी स्मॉल एफ, जो भी है, लेकिन आपको जो है इसका मीनिंग समझ आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। वेव फंक्शन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन या बीटा, एंड वेव फंक्शन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, इसका मतलब यही है। अदरवाइज कोई इतना वो बड़ा इशू नहीं करता ये, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बास बॉक्स में इसको कैपिटल एफ से शो किया गया है, तो कैपिटल एफ और स्मॉल एफ में फिर कोई फर्क कर सकता है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ यस, ओके। इन इक्वेशन 2, अब आप इसको इक्वेशन 2 में आप देख सकते हैं, इसमें क्या है नया, M is the dimensionless matrix element operator। अब ये भी एक ऑपरेटर है, that is the dimensionless matrix element operator। Here we use the time independent wave function due to the weak interaction of a neutrino with the nucleus। Now इस ये आप देख सकते हैं, ये हम इक्वेशन 2 के लिए करें, psi e star, that is the wave function of electron star, is equal to a e raised to power minus iota p e dot r divided by h का t इसकी वैल्यू है। एंड सिमिलरली psi nu is equal to b कैपिटल B e raised to power minus iota p nu r divided by h का, ठीक है। सो ये हमारे पास इन की वैल्यूज़ है, इनकी जो वेव फंक्शंस है इनके साथ एसोसिएटेड हैं, ये आपको याद है, ये हम जनरली इनकी वैल्यूज़ वेव फंक्शन की लिखते हैं। अब पूरे वॉल्यूम का मतलब ये है कि उस डॉटर न्यूक्लियस पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस में हमारे पास जो दो स्टेट्स इन्वॉल्व है, तो उसके लिए हम इस वेव फंक्शन को किस तरह लिख सकते हैं। सो दिस विल बी टेकन एज एन इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू कैपिटल V टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। साई ई स्टार साई ई डी टाउ इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में आपको याद है, इसको हम कौन से इक्वेशन कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। सो नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन हमारे पास, ये इक्वेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है या बीटा पार्टिकल के लिए। इसी तरह न्यूट्रिनो के लिए भी होगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू V, V मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, psi nu star psi nu deta is equal to 1, this is also normalization equation। so capital V हमारे पास whole volume in which the system is enclosed for normalization purpose, ये उस पूरे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, पूरे होल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। P आप जानते हैं, these are the momenta of electron and neutrino। इलेक्ट्रॉन का मतलब बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो की मोमेंटम है जो कि इनके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। और R क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है, R इज द पोजीशन कोऑर्डिनेट। अब हम जब इसको नॉर्मलाइज करते हैं तो इससे हम हासिल कर सकते हैं ये A और B की वैल्यू। सो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर द रूट V। ऑफ कोर्स इसमें बहुत से कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बट वी डोंट गो इन द डिटेल, वी सिंपली राइट the normalization equation and the values of A B is equal to 1 over under the root V। so in this case this psi star E, ये इक्वेशन हमारे पास किस तरह जाएगा, V रेस्ट टू पावर -1/2, मतलब ये है कि इस A की जगह मैंने ये 1 ओवर अंडर द रूट V ये वैल्यू पुट की है, 1 ओवर अंडर द रूट V को मैं V रेस्ट टू पावर -1/2 भी लिख सकता हूँ, E रेस्ट टू पावर माइनस आयोटा PER डिवाइडेड बाय h कट, ये एज इट इज ही रहेगा जिस तरह इस इक्वेशन में है। इसी तरह न्यूट्रिनो के लिए भी यही होगा, साई न्यू वेव फंक्शन ऑफ द न्यूट्रिनो इज इक्वल टू B की जगह में
1/√v पुट करूँगा, e raised to power minus iota p nu r divided by h cut, ये as it is रहेगा. So therefore equation 2 can be written as, अब ऊपर वाले equation 2 इसमें ये इस equation की बात करता है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, HIF is equal to G integral psi f star 1/v e raised to power minus iota over h cut p e plus p nu whole r m psi I d tau. ये इसमें ऑफ कोर्स मैंने तकरीबन 2 स्टेप्स को स्किप किया है, बिकॉज यू नो आप इसको जानते होंगे कि इसका मतलब क्या है, हमने जस्ट ये वैल्यूज पुट की है, ठीक है. सो ये जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना, 1/√v मल्टीप्लाइड बाय 1/√v, सो ये 1/v आपको देगा, क्योंकि दोनों के पास है ना, ठीक है. और e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय h कट, ये यहाँ पर भी है माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय h कट, और यहाँ पर भी है माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय h कट, ये मैंने कॉमन लिया है. और पी ई और पी न्यू ये आपके पास रह जाता है. ये जो स्टूडेंट्स नहीं समझ सकते वो मुझे ज़रा अपना रिस्पांस दे, अदरवाइज ये इसी तरह है, मल्टीप्लाइड बाय आर, ये आर भी सबके पास, दोनों के पास है, आर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. समझ आ गई? मतलब ये है कि इन दोनों में मैंने क्या कॉमन लिया है, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय एच कट आर, ये अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आपके पास रह जाता है पी ई प्लस पी न्यू, और ये साई एफ स्टार एम और साई आई डी टॉप, ये आपके पास इक्वेशन 3 बन जाता है. दैट इज द फॉर द टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, नेम्ड एज इक्वेशन 3. नाउ यहाँ पर मेरे पास ये जो एक्सपोनेंशियल में है ये वाला, इसकी एक्सपेंशन है. अब यहाँ पर इसको मैं किस तरह एक्सपेंड करूँगा ताकि मेरे पास कोई रीजनेबल वैल्यू आ जाए और वो मैं इस इक्वेशन 3 में इक्वेशन 3 सिंप्लीफाइड हो जाए. सो इसको हासिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला ये सीरीज़ एक्सपोनेंशियल सीरीज़, ये आपको याद है, ये मैं यूज़ करूँगा, जिसमें मेरे पास ये है कि e raised to power iota theta, this is equal to 1 plus theta divided by 1 factorial plus theta square divided by 2 factorial plus theta cube divided by 3 factorial and so on. This will give you a series. So इसी सीरीज़ को यूज़ करके मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, e raised to power minus iota divided by h cut पी ई प्लस पी न्यू होल आर, इसको एक्सपेंड करके मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई एच कट पी ई प्लस पी न्यू आर माइनस 1/2 एच कट स्क्वायर पी ई प्लस पी न्यू आर होल स्क्वायर एंड सो ऑन. दिस विल बी ए सीरीज, ठीक है. So neglecting the higher terms of PE plus P nu R and we left only with 1, ठीक है. ये पूरे तमाम के तमाम हायर टर्म्स ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास ये सिर्फ एक रह जाएगा. सो इक्वेशन 1 में अगर मैं इस पूरे टर्म की जगह ये एक पुट कर लूँ, 1 पुट कर लूँ, सो ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा. इक्वेशन 3 implies that HIF is equal to G divided by V integral psi F star M psi I d tau, and this can be further written as G divided by V M modulus IF, MIF modulus, ठीक है. So where MIF modulus ये क्या है, is the overlap integral or nuclear matrix element. ये matrix algebra शायद आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, ये एमफिल मैथमेटिक्स या एमएससी मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है. सो ये क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है मैट्रिक्स अलजेब्रा. सो न्यूक्लियर मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ फाइनल एंड इनिशियल वेव फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, ये उसको रिप्रेजेंट करता है. मतलब ये है कि एम आई एफ मॉडुलस ये इस पूरे टर्म के बराबर है. एम आई एफ मॉडुलस इज इक्वल टू इंटीग्रल साई एफ स्टार एम साई आई डी टॉप. ओके, सो दिस वाज द कैलकुलेशन ऑफ एच आई एफ. ये जो इक्वेशन 1 में हमारे पास एच आई एफ है, तो एच आई एफ हमने फाइंड की है कि इसकी वैल्यू क्या है, जी डिवाइडेड बाई वी एम आई एफ मॉडुलस. अब इसके बाद दूसरी कैलकुलेशन हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द स्टेट डेंसिटी डी एन डिवाइडेड बाई डी ए. दूसरी इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, डी एन डिवाइडेड बाई डी ए. सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर द इलेक्ट्रॉन एट पोजीशन एक्स वाई जेड, ये पोजीशन है इलेक्ट्रॉन का, विद मोमेंटम कंपोनेंट्स पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है. ये इसके मोमेंटम कंपोनेंट्स है पी एक्स पी वाई पी जेड.
पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन का मतलब मैंने आपसे कहा कि इसका मतलब है बीटा पार्टिकल। सो पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट इन फेज स्पेस। फेज स्पेस क्या है हमारे पास? ये एक ऐसा रीजन है, देयर इज अ स्पेस कंटेनिंग थ्री स्पेशियल एंड मोमेंटम डायमेंशंस, जिसमें तीन स्पेशियल, स्पेशियल का मतलब स्पेस एक्स वाई जेड, और मोमेंटम पी एक्स पी वाई पी जेड डायमेंशंस हमारे पास हो तो उसको हम फेज स्पेस कहते हैं। ये यूजुअली जो यूज होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, फेज स्पेस इसको कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, दैट इज डेल पी एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू एच। ये इक्वेशन है बेसिक। सो एक्स कंपोनेंट के लिए हमारे पास बीटा पार्टिकल के एक्स कंपोनेंट, और न्यूट्रिनो के एक्स कंपोनेंट के लिए हम इसको यू लिखेंगे, डेल पी एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू एच, डेल पी वाई डेल वाई इज इक्वल टू एच, डेल पी जेड डेल जेड इज इक्वल टू एच। ठीक है। या अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डेल पी एक्स डेल पी वाई डेल पी जेड इज इक्वल टू एच क्यूब। ये मेरे पास एच क्यूब आ जाएगा। तो ये एच क्यूब मेरे पास क्या है? ये फेज स्पेस है। सो दिस वॉल्यूम इज द यूनिट सेल इन द फेज स्पेस। अब ये फेज स्पेस का यूनिट सेल हमारे पास देगा। यूनिट सेल क्या है? डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डेल पी एक्स डेल पी वाई डेल पी जेड इज इक्वल टू एच क्यूब। दिस इज गिविंग यू volume of the unit cell in the phase space. So ये चीज़ मेरे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये आगे मेरे पास इस डी एन डिवाइडेड बाई डी ए कैलकुलेशन में यूज़ होगा। Now dn divided by de shows the number of ways total energy can be divided between electron and neutrino. अब इसकी समझ आ चुकी होगी कि ये हम अब एग्जैक्ट पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। मसला क्या था? वही एनर्जी थी ना, कि द एनर्जी इज मिसिंग। So then Fermi says that no, it is not missing, it is equally shared between the electron and neutrino. अब ये तो अल्फाज हैं, ये तो वर्ड्स हैं, तो इसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में हम डी एन डिवाइडेड बाई डी ए की इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। सो ये क्या शो करता है? इट इज़ द शोज द नंबर ऑफ वेज टोटल एनर्जी कैन बी डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। लिहाजा मैं इसके लिए क्या करूँगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इलेक्ट्रॉन विद मोमेंटम पी ई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विद मोमेंटम पी ई between PE and PE plus DPE is proportional to the number of unit cells in phase space occupied. इस सेंटेंस की समझ आ गई आपको? यहाँ पर आप देख ले, ये मेरे पास एक सिचुएशन है जो इस पूरे सिस्टम को शो करता है। PE क्या है? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इलेक्ट्रॉन विद मोमेंटम PE, ठीक है। एंड PE प्लस DPE क्या है? बिटवीन PA एंड DPE, बिटवीन PE एंड DPE, ये आप देख सकते हैं, इसको शो करता है। और ये जो डैश्ड रीजन है, ये मेरे पास DPE है, ठीक है, DPE। सो इस रीजन के लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए दिस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन फेज स्पेस ऑक्युपाइड। इसके दरमियान जितने भी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स है, ये उसके प्रोपोर्शनल होगा। This will be proportional to that. Therefore, we can say that the number of states of a particle restricted to a volume V. For example, ये आपके पास total volume V है, ठीक है। So the number of states of a particle restricted to a volume V in actual space and momentum lie between P and PE plus DPE, ये मेरे पास क्या होगा? इस तरह होगा। DNE क्या है? द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ ए पार्टिकल। अब कौन सा पार्टिकल है? तो नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ बीटा पार्टिकल, नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ बीटा पार्टिकल, या नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दिस, और फिर ये पूरा सेंटेंस लगा दे। दूसरे केस में नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ न्यूट्रिनो, समझ आ रही है ना? नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ न्यूट्रिनो, पार्टिकल की जगह आप न्यूट्रिनो पुट कर ले। सो नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ न्यूट्रिनो रिस्ट्रिक्टेड टू वॉल्यूम V in actual space. So ये हम इक्वेशन की फॉर्म में यू लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ बीटा पार्टिकल। DNE ये किसके बराबर है? V। ये आप उस सेंटेंस को कंपेयर कर ले, टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्पेस मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई PE स्क्वायर DPE डिवाइडेड बाय H क्यूब। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। दूसरा पार्टिकल हमारे पास न्यूट्रिनो है, तो न्यूट्रिनो के लिए ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे?
डी एन न्यू इज इक्वल टू वी, वही टोटल वॉल्यूम है, मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई पी न्यू स्क्वायर डी पी न्यू डिवाइडेड बाय एच क्यूब, दिस इज फॉर न्यूट्रिनो। सो ये क्या शो करते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ पार्टिकल्स। सिंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। सो देयरफॉर वी कैन से दैट डी एन इज इक्वल टू डी एन ई डी एन न्यू। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले इन दोनों पार्टिकल के स्टेट्स को, तो ये मुझे टोटल स्टेट्स देगा डी एन फॉर द होल सिस्टम। सो डी एन इज इक्वल टू डी एन ई, यहाँ से पुट कर ले 4 पाई वी पी ई स्क्वायर डी पी ई डिवाइडेड बाई एच क्यूब, एंड डी एन न्यू यहाँ से पुट कर ले, सो ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई वी पी न्यू स्क्वायर डी पी न्यू डिवाइडेड बाई एच क्यूब, ठीक है। ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है इस इक्वेशन में। फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें, सो डी एन इज इक्वल टू 4 4 16, 16 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच 6 इंटू पी ए स्क्वायर पी न्यू स्क्वायर डी पी न्यू, ठीक है। इसको हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है, नेम इट एज इक्वेशन 5, इसको हम इक्वेशन 5 का नाम देते हैं। नाउ फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन, इन ऑर्डर टू शो दैट what does this Pe and P nu represents, ये Pe that is momentum of beta particle, P nu to momentum of neutrino। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आइंस्टाइन की इक्वेशन की हेल्प लूंगा, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी, ठीक है। आप जानते हैं इज इक्वल टू पी सी, पी इज इक्वल टू एम सी या एम वी, एम सी या एम वी मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, जनरल आइंस्टाइन इक्वेशन है। लिहाजा मेरे पास ये किस तरह जाएगा, एक मिनट जरा होल्ड कर ले आप। ओके, हेलो, आवाज दर्जी? यस सर, हेलो, राजेश। Yes, sir. okay, okay. So we left here dn is equal to dne dn new. So we have put these values and then we simplify it in equation 5. Then we use Einstein equation is equal to mc square in terms of momentum is equal to pc, इस फॉर्म में हम लिखेंगे। Now this is generalized, so in order to specify it for neutrino, so energy of neutrino is equal to momentum of neutrino into c, or momentum of neutrino is equal to e nu divided by c. Name it as equation small a. Similarly, P nu is equal to E nu divided by C, ये वही इक्वेशन है। सो टोटल एनर्जी E नॉट, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शो करता है, दिस इज इक्वली शेयर्ड। अब ये देख ले, ये हमने, ये वो इक्वेशन है जो फर्मी वर्डियल फॉर्म में वो शो कर रहा था कि द एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल। सो हियर ई नॉट इज इक्वल टू ई न्यू प्लस ई, ठीक है। So E nu energy of neutrino is equal to total energy E naught minus energy of electron or beta particle. So therefore हमारे पास अब P nu हमारे पास किस तरह जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन ए में मौजूद E nu की जगह एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो की जगह मैं क्या पुट करूँगा, टोटल एनर्जी E naught minus energy of electron या बीटा पार्टिकल। So therefore इक्वेशन ए will become E naught minus E, ठीक है, E nu की जगह डिवाइडेड बाय C। समझ गए सब? इसको आप इक्वेशन बी का नाम दे दें। इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर लूँ, सो मेरे पास क्या जाएगा, डी पी न्यू, दिस इज इक्वल टू डी ई नॉट डिवाइडेड बाय सी, डी ई नॉट डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। नेम इट एज इक्वेशन सी। व्हाई आई एम डूइंग इट, बिकॉज ऑल दीज आर प्रेजेंट हियर इन दिस इक्वेशन, वी पी न्यू
वगैरह वगैरह. So by putting equation A, B, and C in equation 5, hello, hello, यस सर. आवाज दर्जी, यस सर राजी सर. आवाज, हाँ हाँ सही. So putting these equations A, B, and C in equation 5, we will get total number of states dn is equal to 16 pi square v square over h 6 e naught minus ee whole square divided by c square pe square dpe de naught divided by c. आई होप इसको आप समझ चुके हैं. ठीक है, ये डी पी न्यू की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की है इक्वेशन 5 में. ठीक है, और बाकी पी न्यू की जगह मैंने ई नॉट माइनस ई डिवाइडेड बाई सी, चूँकि वहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर आप स्क्वायर पुट कर लें. ये इसके ये वैल्यू पुट की है. सो देयरफॉर ये डी ई नॉट, ये आप देख रहे हैं डी ई नॉट इक्वेशन के इस साइड पर अगर मैं ले आऊँ तो मेरे पास ये आ जाएगा डी एन डिवाइडेड बाय डी ई नॉट इज इक्वल टू 16 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर और H6 सी क्यूब. ये सी स्क्वायर है और ये सी है, सो ये आपस में मिलकर मल्टीप्लाई होकर सी क्यूब बनाएंगे. ई नॉट माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनटू मल्टीप्लाइड बाय पी ई स्क्वायर डी पी ई. ठीक है, ये डी एन डिवाइडेड बाई डी ई आ जाएगा ऑटोमेटिकली, इस इक्वेशन से आ जाएगा. इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ डी एन डिवाइडेड बाई डी ई नॉट 16 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर H6 सी क्यूब और वही वैल्यूज, नेम इट एज इक्वेशन 6. समझ आएगा ये इसकी. ओके, सो ये हमने कैलकुलेट की डी एन डिवाइडेड बाई डी ई, नंबर ऑफ स्टेट्स पर एनर्जी लेवल. नाउ इक्वेशन 4, पुट इक्वेशन 4 इक्वेशन 6 इन इक्वेशन ए. वो जो पहला इक्वेशन ए हमने लिखा था उसमें अगर हम ये वैल्यूज पुट कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी एज इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट पी पी ई डी पी ई इज इक्वल टू, ये बास बॉक्स में लेमडा से रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है, लेमडा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेकिन बहुत से बॉक्स में ये पी पी ई डी पी ई की फॉर्म में शो किया गया है. दिस इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय एच कट एच आई एफ होल मॉडुलस स्क्वायर डी एन डिवाइडेड बाय डी. ये इक्वेशन ए है. जस्ट ये रिफ्रेश रिमाइंड करने के लिए दोबारा इक्वेशन ए को यहाँ पर लिखा गया है कि ये आपके पास इक्वेशन ए है. इसमें दो चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड थी. एच आई एफ, एक ये वैल्यू फाइंड करना था जो कि हमने फाइंड किया, दूसरा वैल्यू डी एन डिवाइडेड बाई डी ई फाइंड करना था, वो भी फाइंड हो चुका है. लिहाजा आप वो दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 4 से और इक्वेशन 6 से यहाँ पर पुट कर लें. सो आपके पास आ जाएगा पी पी ई डी पी ई इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई एच कट एच आई एफ की जगह आप पुट कर ले जी स्क्वायर और वी स्क्वायर एम आई एफ होल मॉडुलस स्क्वायर, और डी एन डिवाइडेड बाई डी ई की जगह आप पुट कर ले 16 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर H6 सी क्यूब ई नॉट माइनस ई होल स्क्वायर पी ए स्क्वायर डी पी ई. ठीक है, अब ये वी स्क्वायर ये इस वी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 16. सो दिस विल गिव यू 32 पाई इंटू पाई स्क्वायर पाई क्यूब डिवाइडेड बाई एच कट इंटू 1 ओवर ये H6 सी क्यूब जी स्क्वायर एम आई एफ मॉडुलस स्क्वायर ई नॉट माइनस ई होल स्क्वायर पी ए स्क्वायर डी पी ई. ये इस तरह आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा. नाउ ये एच कट है और ये H6 है, इसको एक ही पैटर्न में लाना है, या आप एच कट की फॉर्म में लिखे या एच की फॉर्म में लिखे. ठीक है ना. सो इन ऑर्डर टू डू इसको एक ही फॉर्मेट में लिखने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 पाई होल 6 टू डिनोमिनेटर ओनली सो एज टू कन्वर्ट एच इंटू एच कट. ठीक है, ये आप देख सकते हैं एच कट मेरे पास है डिवाइडेड बाई 2 पाई एच कट 6 इज इक्वल टू H6 और 64 पाई 6 और ये आपके पास 1 ओवर 4 पाई 4 की फॉर्म में आ जाएगा. लिहाजा ये इक्वेशन अब एच कट की फॉर्म में आ जाएगा 32 पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 2 पाई होल 6 इंटू एच कट एच डिवाइडेड बाई 2 पाई होल 6 सी एंड दिस होल टर्म यहाँ पर दोबारा लिख लें. ओके, सो in this way you will get जो h कट की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा ये 32 पाई क्यूब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 64 पाई 6 के साथ और आपके पास सिर्फ 2 पाई क्यूब आ जाएगा और बाकी टर्म वही है. सो पी पी ई डी पी ई इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई क्यूब एच कट 7 सी क्यूब जी स्क्वायर एम आई एफ मॉडुलस स्क्वायर ए नॉट माइनस ई होल स्क्वायर पी ए स्क्वायर डी पी ई. नेम इट एज
equation 7. So this is the required equation for the probability of beta particle, that is electron, per unit time in momentum range p and p plus dpe. ठीक है, ये आपके पास वो probability वाला इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन 7. ओके अब ये फर्मी ने जो है, ये फर्मी का आखिरी इक्वेशन है, फर्मी थ्योरी की लास्ट इक्वेशन है, जो कि आपको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या दूसरे अल्फाज में मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो, ये आपको फाइनल इक्वेशन देता है. ठीक है ना. अब इसके बाद एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस जो हमारे पास थी. एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये है कि दोनों पार्टिकल एमिट होते हैं, नेगाट्रॉन बीटा नेगेटिव और पॉजिट्रॉन बीटा पॉजिटिव, दोनों किस्म के पार्टिकल हेवी न्यूक्लियाई से एमिट होते हैं. लेकिन ज़्यादा मकदार में, ज़्यादा तादाद में हमारे पास नेगाट्रॉन ही एमिट होते हैं, बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स एमिट होते हैं, और कम तादाद में पॉजिट्रॉन बीटा पॉजिटिव एमिट होते हैं. ठीक है, यानी ये तकरीबन कोई बाज़ उसमें 96 और 4%, 96% हमारे पास बीटा नेगेटिव नेगाट्रॉन एमिट होते हैं और 4% हमारे पास बीटा पॉजिटिव एमिट होते हैं. ठीक है, समझ आ गई. ओके, नाउ इमेजिन कि जब बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिट हो जाए किसी न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है, ठीक है, और बीटा नेगेटिव क्या है, ये नेगेटिव है, तो इस पर कौन से फोर्स अप्लाई हो गए, ये जब न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा. अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक attractive force इसको कंसिडर कर ले, so there will be electrostatic attractive force upon this negatron. और इसी के साथ अगर पॉजिट्रॉन एमिट होता है, मतलब ये है कि इमेजिन कर ले कि नेगाट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों न्यूक्लियस से बाहर बैक वक्त निकल आए. ठीक है, तो इस पर नेगाट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा. मतलब यह है कि न्यूक्लियस इस नेगाट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि ये नेगेटिव है, और ये पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस इसको रिपेल करेगा, ये इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये इसको रिपेल करेगा. तो अब ये तो एक्सपेरिमेंटल से अपोजिट हो गया, क्योंकि हमारे पास अब पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो न्यूक्लियस को रिपेल करता है, न्यूक्लियस पॉजिट्रॉन को रिपेल करता है, और न्यूक्लियस नेगाट्रॉन को अट्रैक्ट करता है. लिहाजा नेगाट्रॉन की तादाद क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. समझ आ गई. अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को पॉजिट्रॉन और नेगाट्रॉन पर अप्लाई कर ले, तो लॉजिक यही कहता है कि इस तरह होगा, और इस तरह है भी. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 100 नेगाट्रॉन पार्टिकल एमिट हो गए और 100 पॉजिट्रॉन पार्टिकल एमिट हो गए, ठीक है, तो नेगाट्रॉन पर पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये बहुत कम एमिट होंगे नेगाट्रॉन, और बहुत ज़्यादा तादाद में पॉजिट्रॉन एमिट होंगे. लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट है. एक्सपेरिमेंट्स जो हमारे पास हो गए हैं उसके मुताबिक नेगाट्रॉन ज़्यादा तादाद में ऑब्जर्व हो चुके हैं, ज़्यादा तादाद में डिटेक्ट हो चुके हैं, और पॉजिट्रॉन कम तादाद में डिटेक्ट हो चुके हैं. सो ये मसला इस इक्वेशन 7 में ये मसला था. सो ये इक्वेशन 7 लॉजिक को सपोर्ट करता है. लॉजिक जो कि मैंने आपको बताया कि लॉजिक के मुताबिक पॉजिट्रॉन ज़्यादा तादाद में निकलने चाहिए एज कम्पेयर टू नेगाट्रॉन, लेकिन एक्सपेरिमेंट आपको शो करता है कि नेगाट्रॉन ज़्यादा डिटेक्ट हो चुके हैं किसी भी न्यूक्लियस के लिए, आप ले लें किसी भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस के लिए, एज कम्पेयर टू पॉजिट्रॉन. तो इसके लिए इस मसले को हल करने के लिए फर्मी ने एक और करेक्शन इसमें डाल दी, इस इक्वेशन 7 में एक और किस्म की करेक्शन डाल दी, जिसको हम कूलम्बिक करेक्शन कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कूलम्बिक करेक्शन. सो इस स्टेप 3 में हम उसकी बात करते हैं कि फर्मी ने किस तरह इसको इनकॉर्पोरेट किया. Since Coulomb interaction can be neglected for light nuclei that is z is less than 10, हम उसकी बात करते भी नहीं है रेडियोएक्टिविटी में. अगर हम नेचुरल रेडियोएक्टिविटी की बात करते हैं तो हमने z ग्रेटर देन 80 या 82 की बात करनी है. तो लाइटर न्यूक्लियाई के लिए हम Coulomb इंटरेक्शन सिरे से लेते ही नहीं है. ठीक है, एक तो इसको एक तरफ रखते. बट बीटा डीके अगर फॉर हाई z एलिमेंट, ये अंडरस्टूड है, हाई z एलिमेंट के लिए बीटा एमिट होता है z ग्रेटर देन 80. Therefore
वी हैव टू इंक्लूड कूलम फैक्टर। अब इसको कूलम फैक्टर को हमने इंक्लूड करना है। दिस इज आल्सो कॉल्ड फर्मी फंक्शन। कूलम फैक्ट को कूलम फैक्टर को जो है फर्मी फंक्शन भी कहते हैं। दैट इज इफ जेड ई ई, if is a function of z, atomic number z, e that is the energy of beta particle या energy of electron। so इस फैक्टर को अगर हम इनकॉर्पोरेट कर ले इक्वेशन 7 में तो वो मसला फिर हल हो जाता है। ठीक है, सो इक्वेशन 7 पर आ जाएगा पी पी ई डी पी ई 1/2 पाई क्यूब एच कट 7 सी क्यूब जी स्क्वायर एम आई एफ मॉडुलस स्क्वायर एफ, ये अब वो फैक्टर है जेड 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 ई E naught minus E whole square P E square dPe, name it as equation 8। Now this is the final equation, क्योंकि इक्वेशन 7 में उसने इस कोलम्बिक करेक्शंस को इनकॉर्पोरेट नहीं किया था और जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को सपोर्ट नहीं कर रहा था, लिहाजा अब ये इक्वेशन जब उसमें कूलम फैक्टर इनकॉर्पोरेट हो चुका है, अब ये इक्वेशन 8 फर्मी का ये इक्वेशन 8 अब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के साथ टेली करता है, उसको भी सपोर्ट करता है। ये फर्दर किसके बराबर है? ये एफ जेड ई ई हमारे पास 2 पाई ईटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज़ टू पावर 2 पाई ईटा इसके बराबर है। अब ईटा क्या है? ईटा इज इक्वल टू प्लस माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच न्यू, ये ईटा इसके बराबर है। ये आप प्लस माइनस देख रहे हैं, सो ये ईटा इज इक्वल टू प्लस जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच न्यू। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, मतलब ये है कि ईटा के पास मौजूद ये प्लस साइन ये इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल के लिए यूज़ होता है, और ये नेगेटिव साइन हमारे पास पॉजिट्रॉन के लिए, यानी ये पॉजिटिव साइन वाला नेगेट्रॉन के लिए है, नेगेट्रॉन बीटा नेगेटिव एमिशन के लिए, और नेगेटिव साइन वाला पॉजिट्रॉन या बीटा पॉजिटिव एमिशन के लिए हम ये ईटा यूज़ करते हैं। ये आप छोटा सा ये ग्राफ आप उम्मीद है आपको नज़र आ रहा है। वाई एक्सिस में हमारे पास डी एन डिवाइडेड बाई डी ए है। वाई एक्सिस पर क्या है? डी एन डिवाइडेड बाई डी ए, दैट इज देन टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर एनर्जी, एंड एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अब ये 3 लाइन्स है, ये सेंट्रल लाइन आप देख रहे हैं, ये नो कूलम्ब इफेक्ट है, और फिर ये वही बीटा स्पेक्ट्रम है, याद है बीटा स्पेक्ट्रम है वही, ठीक है। और ये लाइन हमारे पास बीटा नेगेटिव के लिए है, और ये नीचे वाला लाइन हमारे पास बीटा पॉजिटिव के लिए है। ये क्या शो करते हैं? ये नीचे वाला लाइन आप देख रहे हैं, दिस शोज द स्मॉल नंबर ऑफ बीटा पॉजिटिव, और यही एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि स्मॉल नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से। तो ठीक है, ये उसके लिए ग्राफ है। ऊपर वाला ग्राफ, ये जो ऊपर वाला लाइन है, और ये जो एक्चुअल नेगाट्रॉन अगर आपके जहन में है तो वो ग्राफ भी इसी तरह था, याद है वो ग्राफ भी इसी तरह हमारे पास था। ये बीटा नेगेटिव के लिए है, और ये सेंट्रल लाइन हमारे पास एक इंटरमीडिएट या एवरेज लाइन को शो करता है। अब वही बात जो मैंने आपसे कहा था, यहाँ पर भी ये शो किया गया है। इफ कूलम इंटरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, अगर हम ये नहीं लेते, जो कि अभी फर्मी ने लिया है, अगर हम ये ना लेते तो क्या होता? देन देयर will be very slow negatron beta negative and very fast positron beta positive particle, that is Coulomb field would accelerated positron and decelerate negatron। यही बात मैंने डिस्कस की। so therefore Coulomb correction enhances the probability of electron emission। जब Coulomb interaction यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुआ तो फिर ये असल में एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इसको फुलफिल करता है। इलेक्ट्रॉन एमिशन ज़्यादा होगा, फास्ट होगा, एंड डिक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिट्रॉन एमिशन एट लो एनर्जीज। आई होप इस स्टेप की या इस पॉइंट की कूलम्ब करेक्शन या कूलम्ब फैक्टर की समझ आपको आ चुकी है। ये जस्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ फर्मी ने अपनी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन टेली करने के लिए, मतलब उनको कोइंसाइड करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए उसने ये फैक्टर यूज़ किया। अगर ये फैक्टर यूज़ ना होता तो फिर अपोजिट सिचुएशन को ये सपोर्ट कर लेता। मतलब ये है कि ज़्यादा तादाद में ज़्यादा फास्ट पॉजिट्रॉन एमिशन और बहुत स्लो या बहुत लेस तादाद में नेगेट्रॉन एमिशन को सपोर्ट करता। फोर्थ स्टेप, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ये तो इंडिविजुअल है, ठीक है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी को किस तरह हासिल करेंगे? सिंस इक्वेशन 8 गिव्स द प्रोबेबिलिटी पर सेकंड फॉर एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद मोमेंटम pa and pe plus dpe,
ठीक है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है। द टोटल प्रोबेबिलिटी पर सेकंड, अब ये देख लें, टोटल प्रोबेबिलिटी पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा। फॉर बीटा डिसइंटीग्रेशन, beta particle disintegration can be obtained by integrating equation at overall volume 0 to p max, maximum momentum, that is lambda, that is the total probability per second is equal to integral from 0 to p max p p e dpe, ठीक है, ये वही इक्वेशन 8 है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/2 पाई क्यूब एच कट 7 सी क्यूब जी स्क्वायर एम आई एफ मॉडल स्क्वायर, ये तमाम फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, ये बाहर आ जाएंगे और सिर्फ इंटीग्रल के अंदर हमारे पास 0 टू पी मैक्स क्या रह जाएगा, एफ जेड ई ई, ये वो कोलम्बिक फैक्टर है, पी ई स्क्वायर ई नॉट माइनस ई ई होल स्क्वायर डी पी ई, ये इस इंटीग्रल के अंदर रह जाते हैं। सो फर्दर इसको अगर हम इंटीग्रेट कर ले, सो दिस विल गिव यू लैम्डा टोटल डिसइंटीग्रेशन या टोटल प्रोबेबिलिटी पर सेकंड या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल टू 0 टू पी मैक्स इज इक्वल टू दिस, या इस इक्वेशन को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जी स्क्वायर एम आई एफ मॉडुलस स्क्वायर m5c4 डिवाइडेड बाई 2 पाई क्यूब एच कट 7, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या किया है, m5c4 मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पी मैक्स एफ जेड ई ई पी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर सी स्क्वायर और ये फैक्टर। सो ये अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, सो लैम्डा इज इक्वल टू जी स्क्वायर एम आई एफ मॉडुलस स्क्वायर m5c4 डिवाइडेड बाई 2 पाई क्यूब एच कट 7 एफ, ये जो स्मॉल एफ है ये इस पूरे टर्म को रिप्रेजेंट करता है। एफ वेरीज रफली एज ई नॉट 5, ठीक है, ई नॉट 5 के ये रफली वेरी होता है। सो इस पूरे फैक्टर की जगह मैंने स्मॉल एफ पुट किया है। नाउ लेम्डा जनरली मेरे पास ये इक्वेशन है, आपको याद है रेडियोएक्टिविटी से कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लेम्डा किसके बराबर है, log 2 डिवाइडेड बाई टी हाफ लाइफ। सो अब मेरे पास ये किसके बराबर है, जी स्क्वायर एम आई एफ मॉडुलस स्क्वायर m5c4 ओवर 2 पाई क्यूब एच कट 7 एफ, ठीक है। सो देयरफॉर इफ 2 पाई एफ टी 1/2 और एफ टी ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई क्यूब एच कट 7 log 2। इसकी इक्वेशन की समझ आ रही है आपको, ये जो t/2 है ना, ये t/2 ये यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा, सो ये एफ t/2 आ जाएगा, ठीक है। और इस एफ के साथ ये जो टर्म है ये इक्वेशन के इस साइड पर आ जाएगा, सो ये 2 पाई क्यूब एच कट 7 log 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आप देख रहे हैं log 2 पाई क्यूब एच कट 7, और ये ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर में है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जी स्क्वायर m5c4 एम आई एफ मॉडुलस स्क्वायर, या सिंपल वर्ड में एफ टी हाफ या एफ टी मेरे पास log ऑफ टी नॉट divided by MIF modulus square, where tau naught is equal to 2 pi cube h cut 7 divided by g square m5c4, ये इसके बराबर है। लिहाजा ये लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन को फुलफिल करता है और ये ही हमारे पास फाइनल इक्वेशन, फर्मी थ्योरी का जो फाइनल इक्वेशन है वो हमारे पास इस फॉर्मेट में आ जाएगा। सो न सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन हो गई, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन हो गई बाय यूजिंग द क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, ठीक है, और इसी के साथ साथ इसकी जो डिसइंटीग्रेशन है लैम्डा उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई है फर्मी थ्योरी से। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। ठीक शो पोई शो अहमद अली। यस सर। हाँ थ्योरी लगा ग्रान था, कैलकुलेशंस पकी देखो मतलब अंडरस्टैंडेबल लगा ना। यस सर। टोल टर्म्स फैक्टर्स ऑलमोस्ट तास पता कल चाहे क्वेश्चन वी नको वाले शे सर दा लेक्चर और देना प्रीवियस से कम यस्टरडे वाला लेक्चर और सर दा को लगा अपलोड की सर मैंने खाबल ता चिकम यूट्यूब लिंक मात्रा ले गलो हम ट्राई को न कोलावे दा सर तاسو ته ما غي ایمیل او دغه एड्रेस درکړې سر هغه ول لاګین کوي سر او بیا یوټیوب چې کوم نه سر هغه آن کینو هغه کې بس تاسو چینل تل راشي تا ما ته ایمیل एड्रेस را لګلې کنه ایمیل एड्रेस اور پاسورډ دواړه میرا لګل سر بس वाह
نو سر دا هغه ول ما لاګین ټرای کوي کړی و. ښه او چې لاګین کوي سر بیا youtube.com ته لاړ شي سر هلته کې سرچ کوي نو دا چې کوم جیمیل دی دا به اتوماتیکلی چینل به سر تاسو اوپن شي. ښه ښه ښه. ها جی سر. سر یو دا هغه تا ما ته هغه آډیو ها لیکچر والا مسله چې وسره سینکرونایزیشن مسله چې هغه आवाज مخکې رسو چې وسره واو هغه لیکچر هم سر ویم چې ملو شي نو خو وای سر. خو ما ته ایمیل کړی ده. ما چې ته ویل ویډیو نشته دی صرف آډیو ده. او جی سر او جی هغه آی تھنک ما ایمیل کړی تا ته ما یو ته خو پی سر ته ما ته وګوره نه دی یو پی نه ملاو ما شوی. ته ها او جی سر دا ملاو به نه دی. وګورو کنه. خازه ټیک شو زه ورته بلکې دا خو به اوس اپلوډ کو په دې دغه باندې کنه او جی یوټیوب سر دا چینل یو باندې به ټول اپلوډ. دا خو اپلوډ کوي سر. ها 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 ټیک ده. زه بس صحیح ده نور د چا څه کوېسچن وي نو وکړئ ښه. We are going to stop recording.